TNN کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں وقار حسین۔ کینیڈین وزیراعظم جسٹن ٹروڈو نے مشکلات کا شکار انرجی سیکٹر کے لیے $1.7 بلین کے امدادی پیکج کا اعلان کیا ہے، جس میں البرٹا، سسکچوان، برٹش کولمبیا میں لاوارث کنووں کی صفائی بھی شامل ہے، جبکہ ٹروڈو نے دیہی کاروباروں، فن اور ثقافت کے شعبوں میں کام کرنے والے لوگوں کے لیے بھی امداد کا اعلان کیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ توقع کی جا رہی ہے کہ لاوارث کنووں کو صاف کرنے کے لیے صرف البرٹا میں 5,200 ملازمتوں کو برقرار رکھنے میں مدد ملے گی۔ We recognize that certain industries are facing even more difficult times. The oil and gas sector, because of the global price war, because of the lower demand related to COVID, and because of the measures brought in to counter COVID itself, those families are particularly hard hit. And that's where this initiative, which will create or preserve 5,200 jobs in Alberta, and the other initiatives, which will lead to perhaps 10,000 jobs across the energy sector, are the kinds of things that we can do right now. Of course, we will continue to work with partners and concerned sectors across the country as we move forward to see if there's a need to do more. ڈیلی بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے ٹروڈو کا کہنا تھا کہ ہمارا مقصد صوبوں میں فوری ملازمتیں پیدا کرنا ہے، جبکہ اس سے کمپنیوں کو دیوالیہ پن سے بچانے میں بھی مدد ملے گی اور اس سے ہمارے ماحولیاتی تحفظ کے اہداف کی بھی تائید ہوگی۔ Our goal is to create immediate jobs in these provinces while helping companies avoid bankruptcy and supporting our environmental targets. In Alberta alone, these investments will maintain 5,200 jobs. We've listened to the concerns of landowners, municipalities, and Indigenous communities who want to make sure that the polluter pay principle is strengthened and that their voices are heard. I want to thank the Government of Alberta for working with us and listening to their concerns. ٹروڈو نے $750 ملین کے ایمیشن ریڈکشن فنڈ کا بھی اعلان کیا، جس میں میتھین پر انحصار کرنے، نوکریوں میں اضافے اور آلودگی میں کمی پر توجہ دی جائے گی۔ Our government will also establish a $750 million emission reduction fund with a focus on methane to create and maintain jobs through pollution reduction efforts. This includes $75 million to help the offshore industry cut emissions in Newfoundland and Labrador. This fund will primarily provide repayable contributions to firms to make them more competitive, reduce waste and pollution, and most importantly, protect jobs. ٹروڈو کی جانب سے $270 ملین کے انٹرپرونل اور انڈسٹریل ریسرچ پروگرام کا بھی اعلان کیا گیا، جبکہ آرٹس، کلچر اور اسپورٹس سیکٹر میں کام کرنے والوں کے لیے $500 ملین کی امداد کا بھی اعلان کیا گیا۔ We're also going to give $270 million to Futurepreneur and the Industrial Research Assistance Program to support innovators and other early-stage development firms that don't qualify for the wage subsidy but still need help. We'll give $500 million to Heritage Canada to support those who work in the arts, culture, and sports sectors. تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ کینیڈا میں کرونا وائرس تیزی سے پھیلنے لگا، متاثرہ افراد کی تعداد 30,000 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ ہلاک ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد 1,550 ہو گئی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کینیڈا میں کرونا وائرس تیزی سے پھیلنے لگا، متاثرہ افراد کی تعداد 30,000 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ ہلاک ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد 1,550 ہو گئی ہے۔ سب سے زیادہ کیسز کینیڈا کے صوبے کیوبیک میں سامنے آئے ہیں، جہاں متاثرین کی تعداد 16,000 تک پہنچ چکی ہے اور کیوبیک میں ہلاکتوں کی تعداد 660 ہو گئی ہے۔ اونٹیریو میں 504 نئے کیسز سامنے آنے کے بعد متاثرہ افراد کی تعداد 9,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ اونٹیریو میں کرونا وائرس کے باعث ہلاکتوں کی تعداد 450 ہے۔ پریمیئر ڈگ فورڈ نے کہا ہے کہ صوبے میں ہنگامی حالت میں توسیع کا فیصلہ اسمبلی اجلاس میں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ آئندہ 28 دنوں کے لیے ہوگا اور اس کے لیے تازہ ترین صورتحال کو سامنے رکھا جائے گا۔ کورونا سے متاثر ہونے والے صوبوں میں البرٹا تیسرے نمبر پر ہے، جہاں اس وقت 2,200 سے زائد افراد متاثر ہو چکے ہیں اور وہاں اموات کی تعداد 50 ہے۔ برٹش کولمبیا میں 1,570 افراد کورونا وائرس سے متاثر ہوئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں کوئی ہلاکت رپورٹ نہیں ہوئی۔ صوبے میں اموات کی تعداد 75 ہے۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز
और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कैनेडियन वज़ीर आज़म का कहना था कि लॉन्ग टर्म केयर सेंटर्स में तिब्बी अमले की मावनत के लिए हेल्थ कैनेडा से रजिस्टर्ड शुदा और तरबियत याफ्ता रेड क्रॉस के मेंबरान भेज सकते हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। कैनेडियन वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि क्यूबेक हुकूमत ने सूबे के लॉन्ग टर्म केयर होम्स की मदद के लिए फौज के तिब्बी अमले की फराहमी के लिए दरख्वास्त की है, जिस पर हम गौर कर रहे हैं। इस हवाले से बाज़ाब्ता दरख्वास्त पब्लिक सेफ्टी के वजीर बिल बेयर को मौसूल हुई है। ट्रूडो का कहना था कि हम देख रहे हैं कि इस मुश्किल वक्त में किस तरह से क्यूबेक की मदद की जा सकती है। हम क्यूबेक की हुकूमत से बात करने जा रहे हैं ताकि उनकी तमाम ज़रूरियात जान सकें और इसके मुताबिक उनकी दरख्वास्त पर अमल करें। ये आम सूरत हाल नहीं है। कैनेडियन वजीर आज़म का कहना था कि लॉन्ग टर्म केयर सेंटर्स में तिब्बी अमले की मुआवनत के लिए हेल्थ कैनेडा से रजिस्टर्ड शुदा और तरबियती याफ्ता रेड क्रॉस के मेंबरान भेज सकते हैं। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कैनेडा एमरजेंसी रिस्पांस बेनिफिट के अहल करार पाने वाले अफराद को दोबारा हुकूमती मदद के लिए दरख्वास्त देना होगी। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन शहरी जिन्होंने पहले 4 हफ्तों में कनाडा के एमरजेंसी रिस्पांस बेनिफिट के लिए दरख्वास्त दी थी और वो इसके अहल करार पाए थे, उन्हें अदायगियों को जारी रखने के लिए दोबारा दरख्वास्त देने की ज़रूरत होगी। वफाकी हुकूमत के CERB के तहत 4 हफ्तों के अरसे में कैनेडियन शहरियों को $2000 4 महीनों तक अदा किए जाते हैं। वफाकी हुकूमत की वेबसाइट पर कोरोना वायरस से मुश्किलात का सामना करने वाले शहरियों की मदद के लिए तमाम मालूमात फराहम की गई हैं। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा एमरजेंसी रिस्पांस बेनिफिट के कवायद में नरमी का ऐलान कर दिया, जिसके बाद जुज़ वक्ती और कम औकात में काम करने वाले मुलाजमीन समेत लाखों मुलाजमीन इस सहूलत से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। नए कवायद के मुताबिक सीजनल वर्कर्स और वो मुलाजमीन जिनकी एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस ख़त्म हो चुकी है वो भी इस बेनिफिट के अहल होंगे, जबकि ऐसे अफराद जो कम औकात में काम करने के बायस माहाना $1000 से भी कम कमा पाते हैं वो भी CERB के अहल होंगे। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। बॉम्बार्डियर की जानिब से कहा गया है कि कोरोना वायरस की वजह से O2 की सप्लाई चेन मुतासिर हो रही है और कनाडा में पोर्टेबल वेंटिलेटर्स की बढ़ती हुई किल्लत को ख़त्म करने के लिए काम शुरू किया है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। बॉम्बार्डियर की जानिब से ओंटारियो हुकूमत की मदद के लिए थंडर बे में आर्जी तौर पर बंद किए गए प्लांट में 18,000 वेंटिलेटर्स तैयार किए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हवाई जहाज और ट्रेन बनाने वाली कंपनी का कहना है कि वो O2 मेडिकल टेक्नोलॉजीज जो सांस की देखभाल की मसनूआत तैयार करती हैं, इसके साथ मिलकर काम कर रहे हैं और कंपनी सामान पर सैंडिंग, पेंटिंग और असेंबली का काम अंजाम देगी। बॉम्बार्डियर की जानिब से कहा गया है कि कोरोना वायरस की वजह से O2 की सप्लाई चेन मुतासिर हुई है और कनाडा में पोर्टेबल वेंटिलेटर्स बढ़ती हुई किल्लत को ख़त्म करने के लिए काम शुरू किया है। तवक्को है कि प्लांट 27 अप्रैल से काम शुरू करेगा। 40 से 50 मुलाजमीन, जिनमें से बेशतर को आर्जी तौर पर मुलाजमत से फारिग कर दिया गया था, वो यहाँ काम करेंगे। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। क्यूबेक सिटी में हाईवे पर एक छोटे तैयारे की लैंडिंग ने वहां मौजूद लोगों को हैरत में मुब्तला कर दिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं। क्यूबेक सिटी में हाईवे पर एक छोटे तैयारे की लैंडिंग ने वहां मौजूद लोगों को हैरत में मुब्तला कर दिया। हाईवे 40 पर सफर करने वाले अफराद ने पुलिस को वाक़े की इत्तला दी। पुलिस का कहना है कि जहाज की लैंडिंग में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो में देखा जा सकता है कि जहाज कारों के बीच लैंड हुआ, जिसके बाद पीछे आने वाली गाड़ियों की रफ्तार कम हो गई। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। क्यूबेक हुकूमत अपनी ज़रूरी खिदमात की लिस्ट में तोसी कर रही है, जिनमें गाड़ियों की देखभाल और रिपेयरिंग शॉप्स भी शामिल हैं।
जहां पर जिस्मानी फासले बरकरार रखने की प्रैक्टिस शुरू कर दी गई है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। क्यूबेक हुकूमत अपनी ज़रूरी खिदमात की लिस्ट में तौसीक कर रही है, जिनमें गाड़ियों की देखभाल और रिपेयरिंग शॉप्स भी शामिल हैं, जहां पर जिस्मानी फासले बरकरार रखने की प्रैक्टिस शुरू कर दी गई है। ताहम मैकेनिक्स का कहना है कि ये थोड़ा मुश्किल है क्योंकि हमारे पास मुख्तलिफ इकसाम की कारें आती हैं। मैकेनिक्स जिन्हें तमाम वर्कर्स की तरह एक दूसरे से 2 मीटर के फासले पर रहना पड़ेगा, लेकिन उन्हें औजार लेने के लिए गाड़ी को चेक करने के लिए घूमने फिरने की ज़रूरत होती है। हुकूमती हिदायत के मुताबिक गैराज जहां रोज़ 100 गाड़ियां आती थी, वहां अब 30 गाड़ियों की इजाज़त होगी। सेफल डिस्टेंसिंग के उसूलों पर अमल करने के लिए फर्श पर निशान लगा दिए गए हैं, जबकि वेटिंग एरियाज में मैगजीन्स को हटाकर हैंड सैनिटाइजर्स रखे गए हैं। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कैनेडियन सेनेट के स्पीकर जॉर्ज फ्रे की जानिब से मौजूदा सूरत हाल में हुकूमत का साथ देने वाले कैनेडियन शहरियों का शुक्रिया अदा किया गया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन सेनेट के स्पीकर जॉर्ज फुरे की जानिब से मौजूदा सूरत हाल में हुकूमत का साथ देने वाले कैनेडियन शहरियों का शुक्रिया अदा किया गया है। अपने पैगाम में उनका कहना था कि इस खौफ की फिजा में कैनेडियन शहरियों की जानिब से इसार और हमदर्दी का मुजाहरा किया गया। अवाम के इस रद्द अमल पर उन्हें हैरत है। शहरियों को मुखातिब करते हुए उनका कहना था कि अब हम जिन हालात का सामना कर रहे हैं, इसमें आपके अज़म ने मुझे हर एतमाद फराहम किया है। हम मजबूत, समझदार और ज़्यादा मुत्तहिद होकर उभरेंगे। मेरी आपसे गुजारिश है कि सेहत आमा के अहदेदारों के मशवरे पर अमल करते रहें। उनका कहना था कि तमाम सेनेटर्स की तरफ से मैं तमाम कैनेडियन के ताउन का शुक्रिया अदा करता हूं, जो आप सब कनाडा के शहरियों को महफूज रखने के लिए कर रहे हैं। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कंजर्वेटिव रहनुमा का कहना था कि कंजर्वेटिव खुश हैं कि आखिरकार लिबरल्स ने हमारी तजावीज़ पर अमल किया और महदूद आमदनी वाले कैनेडियंस को CERB हासिल करने की इजाज़त देंगे। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कंजर्वेटिव पार्टी के शैडो मिनिस्टर फॉर एम्प्लॉयमेंट वर्कफोर्स डेवलपमेंट डैन अल्बास ने कनाडा के एमरजेंसी रिस्पांस बेनिफिट में हुकूमत की तरफ से की जाने वाली तब्दीलियों पर बयान जारी किया है। कोविड-19 के बहरान के दौरान हुकूमत मदद फराहम करने के लिए नए प्रोग्राम्स का ऐलान करने में तेजी से काम कर रही है। उनका कहना था कि अगर CERB की बात करें तो हुकूमत ने वाज़े तौर पर काबिल ज़िक्र जद्दोजहद की है कि कौन कौन इसका अहल है और कब रकम शहरियों के बैंक अकाउंट्स तक पहुंचेगी। कंजर्वेटिव रहनुमा का कहना था कि कंजर्वेटिव खुश हैं कि आखिरकार लिबरल्स ने हमारी तजवीज़ पर अमल किया और महदूद आमदनी वाले कैनेडियंस को CERB हासिल करने की इजाज़त दी। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस ने कहा है कि दुनिया भर में लॉकडाउन की वजह से कसाद बाजारी में इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से लाखों बच्चों की मौत हो सकती है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा है कि दुनिया भर में लॉकडाउन की वजह से कसाद बाजारी में इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से लाखों बच्चों की मौत हो सकती है। उन्होंने दुनिया भर के रहनुमाओं और अहले खाना से कहा कि वो अपने बच्चों की हिफाजत करें। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने मजीद कहा कि वैक्सीन की फौरी तैयारी और सब तक रसाई के बाद ही दुनिया मामूल पर आ सकेगी और कारोबार की बंदिश से होने वाले खरबों डॉलर और लाखों जिंदगियों को बचाने का भी यही वाहिद रास्ता है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने एक बयान में कहा कि स्कूल के बच्चे रोज़ाना स्कूल लंच से हासिल ग़िज़ाइयत पर इन्हिसार करते हैं। स्कूल बंद होने की वजह से 31 करोड़ बच्चों की सेहत ग़िज़ाइयत की कमी से सेहत खराब हो सकती है। एंटोनियो गुतेरेस का कहना था कि लॉकडाउन की वजह से बढ़ती हुई आलमी कसाद बाजारी से खानदानों में कशीदगी में इजाफा हो रहा है और बच्चे घरेलू तशद्दुद और ज्यादती का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि 23 ममालिक में कोरोना के बायस पोलियो से बचाव की मुहिम ही मुअत्तल है। एक तखमीने के मुताबिक 11.5 करोड़ से जायद बच्चे खसरा के खतरों से महरूम हो सकते हैं। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। अमेरिका में कोरोना के शिकार अफराद की तादाद 6,80,000 से तजावुज़ कर गई, जबकि 35,000 के करीब अमरीकी अब तक कोरोना से हलाक हो चुके हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 3 मरहलों में अमेरिका की मईशत को बहाल करने की तजवीज़ दे दी।
تعداد 6,80,000 سے تجاوز کر گئی، جبکہ 35,000 کے قریب امریکی اب تک کورونا سے ہلاک ہو چکے ہیں۔ صرف نیو یارک میں 2.25 لاکھ افراد کورونا کے مریض ہو چکے ہیں، جبکہ نیو جرسی میں 75,000 سے زیادہ مریض ہیں۔ امریکی مالیاتی جریدے بلومبرگ نے صرف نیو یارک میں 4,75,000 نوکریاں ختم ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ امریکہ کی سب سے بڑی ریاست نیو یارک میں کرونا وائرس کے پیش نظر لاک ڈاؤن میں 15 مئی تک کی توسیع کر دی گئی۔ وائٹ ہاؤس میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ جو ریاستیں کورونا سے پاک ہیں وہاں کل سے ہی معاشی سرگرمیاں احتیاطی تدابیر کے ساتھ بحال ہو سکتی ہیں، جبکہ دیگر ریاستوں میں وہاں کے گورنرز کو اختیار ہوگا کہ وہ صورتحال کے مطابق فیصلہ کریں۔ امریکی میڈیا کے مطابق پہلے مرحلے میں ریسٹورنٹ، سینما گھر، کھیلوں کے میدان اور عبادت گاہیں کھولی جائیں گی، لیکن سماجی فاصلے کا خیال رکھا جائے گا، جبکہ دوسرے مرحلے میں سرجری کی اجازت ہوگی اور تیسرے مرحلے میں حالات قدرے معمول کی جانب آئیں گے۔ دوسری جانب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی بیٹی اور داماد لاک ڈاؤن کو نظر انداز کرتے ہوئے چھٹیاں گزارنے نیو جرسی جا پہنچے۔ واشنگٹن ڈی سی میں عوام کو گھر پر رہنے اور غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت کی گئی تھی۔ امریکی صدر ٹرمپ کی بیٹی ایوانکا اور داماد جریڈ کشنر نیو جرسی میں ٹرمپ خاندان کے ریزورٹ جا پہنچے۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNlive.tv۔ کرونا وائرس دنیا بھر میں تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ وائرس کے باعث اب تک پوری دنیا میں 22 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہو چکے ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 22 لاکھ کے قریب پہنچ گئی ہے، جبکہ اموات کی تعداد 1,48,898 ہو گئی ہے۔ کرونا وائرس دنیا بھر میں تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ وائرس کے باعث اب تک پوری دنیا میں 22 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہو چکے ہیں، جبکہ مرنے والوں کی تعداد 1,48,898 تک پہنچ گئی ہے۔ برطانیہ 1 لاکھ سے زائد مریضوں والا چھٹا ملک بن گیا ہے۔ 24 گھنٹے میں مزید 861 مریضوں کا انتقال ہو گیا، جبکہ اموات کی مجموعی تعداد 12,000 سے زائد ہو گئی۔ فرانس میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مزید 753 ہلاکتیں ہوئی ہیں، جس کے بعد ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 17,920 ہو گئی ہے۔ اٹلی میں اب تک 22,000 سے زائد افراد وائرس کے باعث ہلاک ہو چکے ہیں۔ اسپین میں مزید 503 افراد کرونا وائرس سے زندگی کی بازی ہار گئے، جبکہ بیلجیم میں بھی 417 اموات ہوئی ہیں۔ چین میں کرونا وائرس سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد کئی ہفتے 3,300 کے قریب رہی، تاہم گزشتہ روز اچانک اموات کی تعداد 4,600 تک پہنچ گئی۔ اس کی وجہ ووہان میں لاک ڈاؤن ختم ہونے کے بعد اموات میں اضافہ ہے۔ متحدہ عرب امارات میں مزید 2 افراد کی کرونا وائرس سے ہلاکت کے بعد یہاں مجموعی طور پر مرنے والوں کی تعداد 35 ہو گئی ہے، جبکہ 460 نئے مریضوں کے بعد کرونا متاثرین کی تعداد 5,825 تک پہنچ گئی ہے۔ ترکی میں 1700 کے قریب افراد ہلاک، جبکہ 74,000 افراد متاثر ہیں۔ سعودی عرب میں 83 افراد ہلاک، جبکہ 6,400 سے زائد متاثر ہوئے۔ چین نے کرونا وائرس کی لیبارٹری میں تیاری کے امریکی الزام کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ عالمی ادارہ صحت نے بھی وائرس کی لیب میں تیاری کو خارج از امکان قرار دے دیا ہے۔ مائیکروسافٹ کے بانی بل گیٹس نے عالمی ادارہ صحت کو امریکی امداد روکنے کے فیصلے پر ٹرمپ کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کرونا وائرس سے لڑنے کے لیے مزید $150 ملین امداد کا اعلان کر دیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔